آصف علی زرداری نے پاکستان کے 14ویں صدر کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی، جس میں سابق صدر عارف علوی، قائد نون لیگ نواز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، بلاول بھٹو، بختیار بھٹو، آصفہ بھٹو شریک ہوئے۔ آصف علی زرداری واحد سویلین ہیں جو دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز آصف علی زرداری نے 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل سنی اتحاد کونسل کے نامزد کردہ امیدوار محمود خان اچکزئی کو 180 الیکٹورل ووٹ ملے تھے۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran the Holy Quran being the last of them, being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, as last of the prophets, and that there can be no prophet after him, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, the day of judgment, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as President of Pakistan, that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability, honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, and the law, and always in the interest of the sovereignty, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, solidarity, well-being, well-being, and prosperity of Pakistan, and prosperity of Pakistan, that I will strive to preserve that I will strive to preserve the Islamic ideology, the Islamic ideology, which is the basis for the creation of Pakistan, which is the basis of the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest that I will not allow my personal interest to influence my official conduct to influence my official conduct or my official decisions, or my official decisions, that I will preserve, that I will preserve, protect, protect, and defend and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances that in all circumstances I will do right to all manner of people, that I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will, and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President. For the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. دھیما مزاج اور لبوں پر مسکراہٹ رکھنے والے سیاست کے گرو آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سندھی بلوچ سیاستدان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے فرزند ہیں۔ مفاہمت کی سیاست کے بادشاہ آصف علی زرداری کے سیاسی سفر کو جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची से हासिल की। आसिफ अली जरदारी अवाइल उम्री से ही कराची के मुतवव्विल हलकों में जाने जाते थे। 1968 में आसिफ अली जरदारी ने फिल्मसाज सज्जाद की उर्दू फिल्म मंजिल दूर नहीं में चाइल्ड स्टार के तौर पर भी अदाकारी की। सियासत से आसिफ अली जरदारी का सन 80 के वस्त की तक कोई वास्ता नहीं था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए। आसिफ जरदारी के लिए 1987 में फैसला कुन साल था जब उनकी सौतेली वालदा टिम्मी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की एक यादगार तकारीब में शुमार होती है। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसर इक़्तिदार आई तो आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिल हो गए। यूँ उनकी सियासी ज़िंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाली इंतखाबात में वो रुकन कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म मीर बलखशेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर बने। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर माहौलियात व सरमायाकारी रहे। वो 1997 से 1999 तक सेनेट के रुकन भी रहे। 5 नवंबर 1996 को दूसरी बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद आसिफ जरदारी का नाम मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में आया। आसिफ जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में रहे। वो 10 अक्टूबर 1990 बरोज़ बुध पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। जेल में आसिफ अली जरदारी मर्ज़ निकाह रहे। आसिफ अली जरदारी ने सितंबर 2008 में मनसब सदारत का हल्फ उठाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने इनसे हल्फ लिया। सितंबर 2013 में अपने मनसब की आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद आसिफ अली जरदारी बावकार अंदाज से रुखसत हो गए। इनके मनसब सदारत के दौरानिये में 3 वज़ीर-ए-आज़म ने इनके साथ काम किया। राब्ता कमेटी की तंजीम 9 और कौमी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स के इंतखाब का मामला। MQM पाकिस्तान के एडहॉक कमेटी की अहम बैठक कल होने का इम्कान। तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक एडहॉक कमेटी की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। आइंदा चंद रोज़ में MQM पाकिस्तान की जानिब से तमाम शोबा जात, सूबाई कमेटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन्स, टाउन्स और यूसिस की तंजीम 9 भी की जाएगी। खुले समंदर में कश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले 3 माहीगीरों की लाशों को अब तक ना निकाला जा सका। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहनुमा यूनुस खास खेली का कहना है कि लाशें गल जाने के बायस उठाना मुश्किल है। इदारों से मदद तलब की है। मज़ीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। लापता माहीगीरों की तलाश का ऑपरेशन जारी। कराची और ठट्टा के दरमियान समंदर में डूबने वाली कश्ती के लापता माहीगीरों के विरसा शदीद गम से निढाल। गुज़िश्ता रोज़ हादसे के मकाम से मिलने वाली 3 लाशों को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका। इब्राहिम हैदरी जामोट जेटी के मकाम से गोताखोरों को भेजने की तैयारी। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहनुमा यूनुस खास खलीली कहते हैं लाशें गल चुकी हैं, इसलिए इन्हें उठाने में मुश्किलात हैं। मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर को इत्तला कर दी है कि लाशों को निकालने में मदद करें। माहिर गोताखोर भी रवाना कर रहे हैं। यहाँ से एक टीम हमारे माहिर गोताखोर जो हैं माहीगीर समाजी संगत की टीम है, उनको हम केटी बंदर रवाना कर रहे हैं। वहाँ मेरी टाइम के लोग हैं जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनके साथ मिलकर ये अपनी बोट्स के अंदर वहाँ ऑन द स्पॉट चले जाएं। अगर वहाँ जो बॉडी नज़र आती है मेरी टाइम के लोगों को, क्योंकि उनके पास जदीद हालात हैं, तो उन बॉडीज़ को उठाने के लिए, रिकवर करने के लिए हमारी टीम के लोग जाएंगे जो अपने तरीके से उनको उठाएंगे। कश्ती डूबने के वाक़े में 14 माहीगीर लापता हुए थे, जिनमें से 3 की लाशें मिल गई हैं, जबकि 11 की तलाश ताहाल जारी है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। रमज़ान से कबल ही फ्रूट मंडी में महंगाई का तूफान आ गया। सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। किन्नू, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी समेत हर फल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। काविश मेमन की रिपोर्ट है। रमजान की आमद फ्रूट माफिया शहरियों को लूटने के लिए तैयार। महंगाई के तूफान ने फ्रूट मंडी को अपनी लपेट में ले लिया। फलों की कीमत में इजाफा। स्ट्रॉबेरी 250 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। गोल्डन सेब 300 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गरमे की पेटी 1200 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। अमरूद की पेटी भी 2000 रुपए में फरोख्त होने लगी। मंडी के ताजिरों का कहना है कमिश्नर कराची मंडी का जायजा लेकर कीमतों का तयन करें। हर चीज की कीमत बढ़ गई। सरकारी कीमत पर किस तरह अमल किया जाए।
कमिश्नर साहब ने इसका विज़िट भी नहीं किया हुआ है कि क्या पोजीशन है और रेट ऊपर है नीचे है, वो वहाँ से ऐसे बेच देता है, मालूमात नहीं लेते और आवाम के ऊपर बड़ा बोझ है। जो जिसकी मनमानी है वो करते हैं, न लिस्ट चलता है न कुछ चलता है, ये बेकार मतलब लिस्ट लेके आता है, कुछ काम का नहीं है। रेट जब जारी होना चाहिए था ना, जब कल था 1000 रुपये, आज है 3200 का पेटी खरबजे का, आगे जाके क्या रेट बिकेगा? वहाँ पे तो आवाम ठेले वाले के ऊपर, पुलिस भी ठेले वाले के ऊपर आ रहा है, आवाम भी आ रहा है, और यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं है। शहरी बोले दुनिया भर में रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है, यहाँ रमज़ान का आगाज़ होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उसूल नहीं है, बस रमज़ान में हर मुल्क में चीज़ नीचे आ रहा है, यहाँ पर ऊपर चल रहा है। अभी हर चीज़ जो है ना ऊपर जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है ना, माल खा मारे। 18 दाना बीजू हो गया 2200 का, 2000 का 18 दाना बीजू, पिछले साल में वो मिल रहा था 1000-1200 का। तो हर मुल्क में जब है रमज़ान जब आ जाता है ना, तो वो लोग जो है मार्केटों में रेट सस्ता करते हैं, मतलब 100 में 10% सस्ता, और हमारे पाकिस्तान मंडी में यार उससे भी ज़्यादा बढ़ रहा है। पता नहीं ये वजह क्या है, हमें खुद भी पता नहीं है। एक जानिब कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट और दूसरी तरफ फ्रूट माफिया की मनमानी जारी। देखना यह है इस रमज़ान में इंतज़ामिया किस तरह अपने अहकामात पर अमल कराती है। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। हुकूमत सिंध की हिदायत पर कराची इंतजामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम शुरू। 137 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 8 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत का कहना है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तरजीही कोशिशें करने की हिदायत की है। ज़िला जनूबी में 36 गिरां फरोशों पर 2,96,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। शर्की ज़िला में 17 गिरां फरोशों पर 1,48,000, ज़िला गरबी में 49 गिरां फरोशों पर 75,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना हुआ। ज़िला वस्ती में 12 गिरां फरोशों से 1,65,000 रुपये लिए गए। मलीर में 42,000 रुपये वसूल किए गए। करंगी से 65,000 और केमाड़ी के ताजरों से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत अतीकुर रुमैती ने यतीम बच्चों के स्कूल में होने वाले आर्ट के मुकाबलों में शिरकत की। यूएई के कौंसल जनरल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। बकीत अतीकुर रुमैती ने यतीम बच्चों की जानिब से बनाए गए आर्ट के फनपारों को दिल खोल कर तारीफ की। बच्चों ने कौंसल जनरल के सामने टेबलोज भी पेश किए। तकरीब के मेहमान खसूसी बकीत अतीक बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए घुल मिल गए। कौंसल जनरल का कहना था कि यही बच्चे आगे जाकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कौंसल जनरल ने तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। रहमत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुंतज़मीन ने कौंसल जनरल की आमद पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर्स ने डायबिटीज़ के मरीजों को रमज़ान में इजाफी एहतियात का मशवरा दे दिया। जी बिल्कुल, माहिरीन सेहत का कहना है कि डायबिटीज़ के मरीज रमज़ान में इजाफी एहतियात करें। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक इस्तेमाल की जाए। शुगर के मरीजों का लेवल कभी हाई तो कभी लो रहता है। डायबिटीज़ के मरीज अपने मुआलिज के मशवरे और दवाओं की मकदार में मामूली रद्दोबदल के बाद रोज़ा रख सकते हैं। अफ्तार के दौरान खाने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शुगर के मरीज रमज़ान में अपनी शुगर चेक करें और ज़रा भी शक हो तो डॉक्टर से रुजू करें। रमज़ान अल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने का अज़म। तंजीमें भी मैदान में आ गईं। लियारी में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान बचत स्टॉल लगा दिया गया। आगरा ताज कॉलोनी में लगने वाले सस्ते राशन स्टॉल पर चीनी 130 रुपये, घी, कुकिंग ऑयल 400 रुपये किलो में दस्तियाब है। काविश में मन की रिपोर्ट। से परेशान आवाम के लिए सस्ता राशन स्टॉल सज गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आगरा ताज कॉलोनी में कायम सस्ते राशन स्टॉल पर चीनी 130 रुपए किलो, घी और कुकिंग ऑयल 400 रुपए किलो, सुपर आटा 5 किलो 800 रुपए, 125 ग्राम की चाय की पत्ती 110 रुपए, सफेद चने 270 रुपए किलो में दस्तियाब हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा शकील पटनी ने कहा कि ताजिरों ने मार्केटों में रश देखकर अजनास की कीमतें बढ़ा दी हैं। महंगाई के दौर में बड़े ताजिर आवाम को रिलीफ दें। आवाम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तकरीबन 1500 घर के लिए हमने जो राशन ये बनाया गया था, अल्लाह का शुक्र है आपके सामने कैंप पूरा खाली हो चुका है और आवाम को सस्ता लगा तभी आवाम ने खरीदा है। मार्केट से कमों पे 20 से 25% कम डिस्काउंट पे ये राशन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे ताजिर लोग को भी मेरा भी पैगाम है कि आप लोग आवाम को रिलीफ दें, सस्ता करें।
ना कि 5-10 रुपए बढ़ाएं बल्कि कम दे, चूँकि पब्लिक रमज़ान महीने में आपसे रिलीफ चाहती है। राशन स्टॉल इंतजामिया ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किया गया है, रियायती नरखों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से कैंप लगाया गया है, तो इसमें यही है कि हम लोगों को खुद चीज़ें इतनी आगे से महंगी मिली, हम क्या करें। कल हम लोग जो मार्केट गए, उन्होंने ताजरों ने 10-20 रुपये और बढ़ा दिए, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई को थोड़ा कम किया जाए, अवाम बहुत परेशान है। शहरियों की बड़ी तादाद ने बचत स्टॉल से अशिया खरीदी और इसे बेहतरीन इकदाम करार दिया। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मोहम्मदी ब्लड बैंक में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। बिल्कुल, इस मौके पर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सेक्रेटरी दरनाज जमाल ने कहा कि आज की ख़वातीन हर मैदान में कामयाब हैं। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में मोहम्मदी ब्लड बैंक में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब में ख़वातीन मुकर्ररीन ने शुरा को ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में आगाही दी और बताया कि माशरे में खुद को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी नाज जमाल ने कहा कि हर मैदान में कामयाबी का लोहा मनवाने पर ख़वातीन दाद की मुस्तहिक हैं। मैं तो चले वर्किंग वीमेन हूँ या अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वर्किंग वीमेन हो गई हैं जो कि निभा रही हैं इस रोल को, लेकिन जो घरों पे हैं वो भी बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, वो भी उस काम को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, तो वही रिस्पेक्ट जो है उनको भी मिलनी चाहिए। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन के CEO मेहदी हसन का कहना था कि ख़वातीन माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। हर शोबे में ख़वातीन की शमूलियत खुशाइंद है। एक माँ, एक बहन, एक बेटी, बीवी जिस तरह से पूरा निज़ाम लेके चल रही होती है ना, तो ये एक आसान काम नहीं है। तकरीब में मोहम्मदी ब्लड बैंक में काम करने वाली ख़वातीन को शील्ड्स और तोहफ़े पेश किए गए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। रमज़ानुल मुबारक से कबल शहर में पानी के मसाइल संगीन हो गए। कोरंगी सेक्टर 33C में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। कोरंगी 33C का इलाका किल्लत आब का शिकार, इलाका मकीनों की पानी के लिए दुहाइयाँ। कोरंगी 33C में बरसों से जारी पानी की किल्लत शदीद हो गई। इलाका मकीन कहते हैं पानी की किल्लत से घरेलू उमूर मुतासिर, पानी खरीदने से अखराजात बढ़ गए, आमदनी का एक हिस्सा पानी की नजर होने लगा। पानी खरीदे या गैस खरीदे या बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे, या पेट में डाले या बच्चों का पेट दे, या इनकी फीसें भरे, है क्या क्या करें हम लोग। तो आता नहीं है, 10 सालों से 20 सालों से पानी नहीं आता है, हम खरीद के पीते हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि पानी के मसाइल के हल के लिए कई बार वाटर कॉर्पोरेशन के दफातर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ दिलासे मिलते हैं। 18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए, पानी आता ही नहीं आगे। बस सर्दी पानी आता है, उसके बाद गर्मी शुरू होती है, पानी खत्म हो जाता है, जड़ से चला जाता है पानी। हमने बहुत मेहनत की है, वाटर बोर्ड के MD हो गए और GM वगैरह हम सबके पास गए, लेकिन सब हमें यही लॉलीपॉप देते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना पानी का मसला हल हो जाएगा। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि किल्लत आब को फौरी खत्म किया जाए ताकि माह मुबारक में सुकून से इबादत की जाए। कैमरामैन फरहान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के 22 साला आर्टिस्ट मुनीबुर रहमान ने मुख्तलिफ फिल्मों के सुपर हीरोज़ को कैनवस की जीनत बना दिया। रंगों के इस्तेमाल और नफासत ने फनपारों को असल का रंग दे दिया है। जामिया कराची के शोबे UBIT के तालिब इल्म से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें अगर ये बात कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जामिया कराची के तालिबे इल्मों की पूरे कराची में धूम मची हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन में और यहाँ पर शुबा UBIT जामिया कराची का एक ऐसा होनहार तालिबे इल्म मेरे साथ मौजूद है जिसने खूबसूरत मुसव्वरी का जो शाहकार है वो कैनवस की सूरत में जो है उतारा है और स्पाइडरमैन का एक खूबसूरत सा एक कैरेक्टर जो है वो उसको जो है तैयार किया। इस वक्त मेरे साथ शुबा UBIT के तालिबे इल्म मुनीबुर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। मुनीब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना खूबसूरत आपने कैनवस की पेंटिंग तैयार की है। मुनीब मुझे बताएं, UBIT से ताल्लुक है, कंप्यूटर साइंस के आप तालिब इल्म हैं, लेकिन फ़नून लतीफ़ा से लगाव रखते हैं, ये लगाव कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? ये असल में मैं जो है बचपन से मुझे मुसव्वरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे स्केचेस वगैरह मैं करता था कार्टून कैरेक्टर्स की ख़ास तौर पे जैसे, तो मैंने देखा कि अपने अंदर अगर मैं पेंटिंग की तरफ आता हूँ, 1.5 साल पहले मैंने मुसव्वरी का आगाज़ किया एज अ प्रोफेशनली, तो मैं जब पेंटिंग की तरफ आया तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक ग्रोथ आ रही है।
تو میں نے مطلب 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ ایسی پینٹنگ بنا لی جس کو اگر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو مجھے دنیا بھر سے جو ہے بہت زیادہ مطلب اتنی اپریسیشن مل گئی کہ میں آگے لگ کے اگر کرنا چاہوں ایز اے پروفیشنلی اس کو لے کے چلنا چاہوں تو میں اور آگے بڑھ سکتا ہوں اس میں. اور آگے بڑھ سکتا ہوں. اور یقیناً ہمت، لگن اور جذبہ ہو تو تمام تر کام جو ہے بعد تکمیل تک جا پہنچتے ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ جو مصوری کا شاہکار ہے منیب الرحمان نے تیار کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے اس پینٹنگز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو نہ کہ صرف پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے جو ہے جو لوگ اس پینٹنگ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پذیرائی دے رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ کے لیے بھی یقیناً یہ اپلائی کریں گے، اور یہ جو مصوری کا یہ جو ایک شوق ہے آگے بھی اسی طریقے سے ان کا جاری و ساری رہے گا. جی، اور اب آپ کو بتاتے جائیں گے کھلے سمندر میں کشتی ڈوبنے کا حادثہ، ہجامڑو کریک سے 4 لاشیں نکالی گئی ہیں. لاشوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا. اس پر مزید بات کریں گے آئمہ خان سے. جی آئمہ. جی بالکل، دیکھیں کھلے سمندر میں جو کشتی ڈوبنے کا معاملہ تھا، جامڑو کریک میں جو کشتی ڈوبی تھی اس میں جو ہے وہ اب ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ روز ایک جو ہے وہ اطلاع ملی تھی کہ سمندر میں جو جائے حادثہ تھا وہاں پہ جو ہے وہ 3 لاشیں جو ہے وہ تیرنے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ آج میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ 4 لاشیں اس جگہ سے نکالی گئی ہیں، اور لاشوں کو جو ہے وہ اب کراچی منتقل کیا جائے گا. کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ لاشوں کو کراچی منتقل کیے جانے کا امکان ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ترجمان کوسٹل میڈیا کمال شاہ کا یہ بتانا ہے کہ لاشوں کو کراچی منتقل کیا جائے گا، جبکہ جو ہے وہ ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ اس معاملے پہ ابراہیم حیدری کے مقام پر جو ہے وہ لاپتہ ماہی گیروں کی جو فیملیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا. اور ابھی جو ہے وہ گزشتہ 1 گھنٹے قبل جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے، یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 4 لاشیں جو ہیں وہ جائے حادثہ سے نکالی گئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کراچی کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ منتقل بھی کیا جائے گا. تاہم اب تک جو ہے وہ لاشوں کی شناخت نہیں کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.